Hello students, once again I am Pramod sir, welcome you all in 7th standard maths period. So students, in the lesson rational numbers, we have already taken all the related concepts and we have taken many more examples from all the exercises. Still students, I want to take some of the examples from chapter Jacob, so that it will be helpful for you for understanding the every concept in detail. Okay, so students, let us start. So first of all, the eighth one, divide the following. So students, divide the following concepts you have seen earlier in fractions also. In this lesson also we have taken many examples related to division of rational numbers. Still, let us try to solve this. Here students, 3 whole 1 by 7 divided by 11 upon 10 is there. So students, you know that the first step will be the question itself, right? 11 upon 12 is equal to. Now students, let us convert this mixed fraction into improper fraction first. 7 3s are 21 plus 1, 22. 22 upon 7. Now students, you can see here proper fraction is there divided by. So this divide becomes multiplication. We are going to do multiplicative inverse now. So 12 will be in the numerator and 11 will be in the denominator. That is reciprocal of 11 upon 12 is 12 upon 11. So instead of division sign, we can write here multiplication, right? Multiplicative inverse we have done now. Now students, you can see numerator and denominator parts. 11 ones are 11, 11 twos are 22. Now in the denominator 7 into 1, only 7 is there, and in numerator no multiple of 7 is there. So 2 into 12, it will be 24, and 7 ones are 7. So students, it's improper fraction, so we can convert it into mixed fraction. 7 3s are 21 and 3 is remainder. You know students, 7 3s are 21 and 3 is remainder. So the final answer is 3 whole 3 by 7. And you know students, we have to write the question, the given question equals to the answer, the final answer. In this way, we have to solve such questions. Here students, only negative sign is there. Minus 85 upon 9 divided by 34 upon 7 is equal to, it's very easy now, minus 85 upon 9. Now multiplicative inverse. So your 7 will be in the numerator and 34 will be in the denominator. Now students, let us start. Which terms can be cancelled here? Let us see. So you know students, in the numerator 85 is there and 7 is there, right? And in the denominator 9 and 34. So students, 17 is the SCF. 17 SCF है 85 और 34 का. That means 17 2s are 34, right? And 17 5s are 85. यानी 17 जो है माइनस 85 और 34 के बीच में अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे 34 को भी और minus 85 को भी, so what will we get? 34 divided by 17 2 मिलेगा और 85 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 5. Now students, nothing will cancel here. We can see it. Minus 5 into 7 minus 35 divided by 9 into 2. 9 2s are 18, right? So once again we can convert this minus sign, we can put in between numerator and denominator. So 18.
सो 35 को अगर 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18 टू द 36 होते हैं, सो 18 1 द 18 एंड द रिमाइंडर विल 70. So minus 1 integer 17 upon 18 is the answer, and you know students we have to write down the question also, right? यहाँ पर हम question हमको लिखना पड़ेगा. Now students, moving further, I have seen that some students can confuse here in 12th C. So what is the question? Let us see. Find three rational numbers between 4 and 5. 4 and 5 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर्स चाहिए. स्टूडेंट्स 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स नहीं है, राइट? मगर रैशनल नंबर्स तो इनफाइनाइट रहेंगे. आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस दैट अगर हमको 3 पूछे हैं तो हमको 3 ही लिखना है. इनफाइनाइट तो रहते हैं, मगर हमको अगर क्वेश्चन में 3 पूछे हैं तो 3 ही लिखना पड़ेगा. 5 अगर पूछते हैं तो 5 लिखना पड़ेगा. ओके, हियर स्टूडेंट्स 4 एंड 5 है, तो स्टूडेंट्स कैन गेट कंफ्यूज दैट 4 एंड 5 में तो है ही नहीं. नो स्टूडेंट्स, लुक हियर, 4 इज नथिंग बट एंड 5 इज नथिंग बट. हमको 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए 3, मगर व्हाट इज 4? वेरी सिंपली हम वी कैन से इट इज नथिंग बट 40 अपॉन 10. देखो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट जो रेशियोज है, इक्विवेलेंट रेशियोज हमने देखे हैं. 4 इज नथिंग बट 4 अपॉन 1, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 1 into 2 तो 8 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. मेनी मोर वी कैन राइट. यानी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 दा 12, 1 3 दा 3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनफाइनाइट रहेंगे. अगर हमको 3 या 4 या 5 या 10 भी अगर रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो व्हाट वी डिड इन अर्लियर क्लासेस, वी मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, राइट? अब 40 अपॉन 10 वेरी सिंपल. 5 50 अपॉन 10 बिकॉज वी नीड द डिनोमिनेटर्स इक्वल. अगर इसका डिनोमिनेटर 4 को अगर मैंने 8 अपॉन 2 में अगर कन्वर्ट कर दिया तो डिनोमिनेटर तो 2 हो गया. यहाँ पर भी फिर मुझे 2 डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, राइट? मीन्स एवरी स्टूडेंट्स आंसर कैन डिफर फ्रॉम वन अनदर. हर एक बच्चे के आंसर जो अलग अलग हो सकते हैं, राइट? मगर यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल वे बताया आपको. 4 इज नथिंग बट 40 अपॉन 10, यानी 4 ही हो गया, एक एक जीरो कैंसिल. और 5 इज नथिंग बट 50 अपॉन 10. नाउ स्टूडेंट्स, द डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड यू कैन सी 40 अपॉन 10 है और 50 अपॉन 10. इसमें के 41 अपॉन 10 से लेकर 49 अपॉन 10 तक हम पूरे के पूरे नहीं लिख सकते, बिकॉज what we need only 3 rational numbers. So therefore the 3 rational numbers, the three rational numbers between 4 and 5 are 4 and 5 is nothing but 40 upon 10, ये 4 हो गया, and 5 is nothing but 50 upon 10 है. So R 41 upon 10 लिख सकते हैं, 47 upon 10 लिख सकते हैं, and 48 upon 10. आप कोई भी 3 लिख सकते हो. अगर आपने दोनों के डिनोमिनेटर 2 बना के अगर 3 मिलते हैं वो भी लिख सकते हैं. 3 बना के डिनोमिनेटर अगर 3 लिख सकते हैं वो भी चलेगा. अगर डिनोमिनेटर अपना 1000 और 1000 भी अगर करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का यूज करके, देन आल्सो यू कैन गेट द आंसर. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट को बराबर समझ लो स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन, वर्ड प्रॉब्लम, राइट? 3 friends Mala, Leela and Sheila. 3 friends हैं Mala, Leela and Sheila.
divided a box of apples weighing 15 whole 9 upon 10 kg equally between the three of them. अच्छा, यानी एक बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्पल्स है, उसका वेट है 15 9 अपॉन 10 kg, 15 होल 9 अपॉन 10 kg, और ये तीनों में डिवाइड करना है, वो भी इक्वली। माला एक पार्ट माला को मिलेगा, दूसरा पार्ट लीला को मिलेगा, और तीसरा पार्ट शिव। इक्वल। हाउ मेनी केजीज ऑफ एप्पल्स डिड ईच गेट? तो हर एक को कितना एप्पल मिलेगा, कितना केजी एप्पल मिलेगा? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास में 9 चॉकलेट्स है और वो 3 स्टूडेंट्स में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली, तो हम क्या करेंगे? 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी हर एक को कितना कितना आएगा? 3 आएगा। इट इज नथिंग बट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच मीन्स डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये। इट्स वेरी सिंपल, राइट? दैट मीन्स व्हाट? टोटल वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का टोटल वेट कितना है? 15 whole upon 9 upon 10, right? 15 whole 9 upon 10 kg वो उसका टोटल वेट है। Therefore 15 whole 9 upon 10, इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, 3 फ्रेंड्स है तो मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 3 से, तो ऑफ कोर्स वी विल गेट द आंसर नाउ, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स टुडे एज वेल। सो 10 और 15 आर 150, 150 प्लस 9 159 डिवाइडेड बाय 10। नाउ हियर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1 है, 3 मीन्स 3 अपॉन 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स बराबर हमको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, राइट? नाउ वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। 9 plus 5 14 plus 1 15, न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल डिजिट्स 15 आ रही है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3, राइट? सो 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 3 are 9, so 53 upon 10, दैट मीन्स इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो ये 10 5 are 50, रिमाइंडर 3, यानी 5 होल 3 upon 10 kg, यानी हर एक को इतना केजी एप्पल आएगा। Therefore, फाइनल आंसर पर प्रॉब्लम में लिखना ही है, यू मस्ट राइट फाइनल स्टेटमेंट इन एवरी वर्ड प्रॉब्लम, मेक श्योर इट, ओके? सो हाउ मेनी केजीज ऑफ एप्पल्स did each get? Therefore each got, each get का पास्ट टेंस किया हमने, each got 5 whole 3 upon 10 kgs apples, यानी हर एक को 5 whole 3 upon 10 kgs एप्पल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।